Dear students, my today's lecture is dedicated to those who are struggling for the means to write a research paper. Means how to write a research paper and what are the contents should be there inside, and or you can say how to start writing a research paper. So in this screen you can see this is the published paper authored by me and my supervisor when I was doing PhD at IIT रुड़की. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए कि लाइक एक प्रोजेक्ट टाइटल होना चाहिए, एंड देन these are the author's information and abstract. So abstract, main body and conclusion, these three are important. So abstract क्या होता है, what is the abstract means, it includes the problem identification, what are the problems you are facing, and what are the approaches to solve that problem. कि लाइक इन दिस केस स्पेस में रोबोट जाने के बाद उसका बेस क्योंकि फिक्स नहीं होता, अब वो फ्लोटिंग रहता है, अब फ्लोटिंग रहता है, इन दैट केस हाउ टू कैप्चर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, लाइक सैटेलाइट भेजा जाता है, तो उसके बाद आफ्टर फुलफिलिंग इट्स पर्पस, उसके बाद तो स्पेस में ही वो टम्बलिंग करता रहता है, उसको डिकम्पोज करना होता है. सो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, to capture the unnecessarily the objects you can say or satellites they are roaming in the space, और उसको प्रॉपरली कैसे कैप्चर किया जाए और कैप्चर करने के फिर क्या तरीके होने चाहिए. सो इन अब्स्ट्रैक्ट यही चीज़ डिस्कशन किया जाता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में, अब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच हो सकता है हमारा, क्या सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो सकता है, एंड लास्ट में कंक्लूजन. या कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में क्या है, व्हाट इज योर सॉल्यूशन, and that you have to show in means that you have to quantify. Suppose the trajectory you are able to get with that much accuracy, error is less, like that, तो error कितना परसेंट लेस, ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग. सो अब्स्ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, अब कंक्लूजन में क्या करना है, हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए, हाउ टू गॉट द सॉल्यूशन, okay, that you have to discuss. And in research paper everything should be justified, like it happens, okay. So why it happens, that you have to justify. If you are not sure, then you may write it may be due to the reason, may be due to like that, but ऐसा नहीं कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, और सपोज approaches, solutions, controllers, whatever you're going to use to solve that problem, उसको भी justify करना है, why you are taking, why means why your approach is that only, why not other approaches. So ये भी रिसर्च में आता है, ओके. और अगर मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में आपका so the main body, or you can say the structure of a research paper, it has introduction, then body, then conclusion, and in more detailed way abstract already we have discussed, then introduction, or you can say the thesis statement. So in introduction there should not be too much basics like definitions, it should be advanced level, but it should tell about the uh, means the title, the project, the briefing about the project, okay. And then the literature review, कि whatever you're going to do, whatever you're going to do means the task, the project task you're handling. So you have to give some support from the literature. So what informations we get, कि your idea is whether totally new concept, or this kind of things means the research
already available. Okay, and but at what level? कि हो सकता है आपका रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में या तो आप कॉस्ट मिनिमाइज करें या एफिशिएंसी बढ़ाएं, या दूसरा क्या होता है आप टोटली एक नया कॉन्सेप्ट दे दें, लाइक आपका न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, या फिजिक्स में बहुत सारी जो लॉस है, ठीक है, वो सबका जो लाइक डेरिवेशंस, द न्यू कॉन्सेप्ट. Okay, but suppose incremental research is there. Okay, so what is new in your research? That you have to compare with the available literature. Literature का मतलब क्या है? Published paper, जैसे आपको पहले अभी जस्ट दिखाया, published papers हो गया या books हो गया. Okay, or you can say the online materials available in the internet, वो हमारा लिटरेचर है. तो उसका रिव्यू करना कि लाइक इन सीक्वेंस ईयर वाइज. जनरली क्या करते हैं, 10 years का रिसर्च पेपर, द वी सेलेक्ट 10 years रिसर्च पेपर एंड देन रिलेटेड टू आवर टॉपिक. उस टॉपिक को आप जस्ट आप कीवर्ड्स को यू हैव टू सर्च. Where you have to search? Either in Google Scholar or any journals site like IEEE जर्नल है, तो वहाँ पे जाइए आप, ठीक है, गूगल में टाइप कीजिए और वहाँ पे जाके आप सर्च कीजिए, ठीक है. या गूगल स्कॉलर में आप जैसे ही सर्च करेंगे सब कुछ आ जाता है, वो आपको सीधा वेबसाइट पर ले जाता है, एक पर्टिकुलर जर्नल के वेबसाइट पर ले जाता है. ओके, सो फ्रॉम दैट आपको ईयर बताना है कौन से ईयर में पेपर पब्लिश हुआ, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स. ओके, आपको यह भी बताना है कि अगर इफेक्टिव रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो आपको यह भी बताना है कि व्हाट आर द थिंग्स आर मिसिंग इन दैट पेपर, और यू कैन सी क्या डिमेरिट्स है उस पेपर में जो हम अपने नया वर्क में उसको ओवरकम कर सकते हैं. ओके, देन मैथडोलॉजी कि व्हाट मे बी द प्रॉपर अप्रोच टू डील विथ द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, तो उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, आप मॉडलिंग कर रहे हैं, सिमुलेशन कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे. लाइक यू नीड टू डिराइव इक्वेशंस, you need to tell about the experimental setups, you need to tell about the hardwares, softwares required. Okay, and you need to derive the again repeating derive the equations related to your topic. Okay, then at the last, not last, after that results. Results में आपको बताना है what are your findings, and also you have to justify your findings, why you are getting that, whatever you are getting. If there is changes in the sharp changes in the curve, you have to justify why there is changes, what may be the reason, what may be, मतलब क्या वजह हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है. तो और डिस्कशन में आपको सिर्फ बताना नहीं है, और उसके बारे में डिस्कस करना है कि लाइक ये करने से ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, और क्या करने से फिर अगर सपोज अनवांटेड things we are getting, so what are the parameters, so that we can correct that. Like I'm from robotics background, so I can say suppose due to if motors or controllers are not sufficient, so trajectory tracking we cannot get, means the object in the space we cannot capture properly. ठीक है, so ये आपका डिस्कशन में. So फिर what may be the solution, then we increased the gain parameters of the controller, then we got this result, and this result we can recommend this may be good for the particular task, and also and then also you have to verify with the available data, available research papers. ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. अगर आपका न्यूमेरिकल रिसर्च है, न्यूमेरिकल लाइक मॉडलिंग सिमुलेशन है, तब आप जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उससे आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि सारी चीज़ सेम चीज़ अवेलेबल हो, नहीं तो रिसर्च क्या होगा, कुछ भी हो उसके साथ आपको कंपेयर करना है. देखिए इसमें यहाँ तक रिसर्च हुआ था, अब मेरा उसके आगे का रिसर्च है, या इसके पहले जो रिसर्च हुआ था उसमें ये कमियाँ था, अब मेरे में वो कमियाँ को दूर किया गया है. ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट वर द मिसिंग्स इन दैट पेपर इज नाउ overcome by my paper, and I have got the better results. In this way you have to uh,
मीन्स वेरीफाई। ओके, बात करते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन तब होता है जब आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है। ओके, एंड वैलिडेशन विद द अवेलेबल, अगेन अवेलेबल रिसर्च पेपर्स। ओके, देन रेफरेंसेस कि इन द लिटरेचर रिव्यू what are the literatures you have cited in your research paper. So full details you have to give, like in this आप देख सकते हैं रेफरेंसेस। ओके, 1 2 एंड 1 में आप देख सकते हैं व्हाट आर द इंफॉर्मेशन आर देयर। सो द ऑथर्स इंफॉर्मेशन इन दिस 2 ऑथर्स आर देयर एंड दिस वन इज नॉन हॉलोनॉमिक पाथ प्लानिंग ऑफ स्पेस रोबोट्स वाया बायो directional approach. This is the title of the paper, and the publisher details means journal details. तो ये आपका IEEE में विच जर्नल आपका ट्रांजेक्शन ऑफ रोबोट ऑटोमेशन, ठीक। देन ये कब पब्लिश हुआ वो भी देना है आपको। देन आपका वॉल्यूम नंबर, देन द पेज नंबर, ये डिटेल्स देने होते हैं। अब देखिए आपका 1 और 2 का मतलब क्या है। So where I have cited 1, I am finding 1. Where is 1? So that one can understand how to cite the literatures in their own research paper. So where is 1? It is somewhere, I am not finding. It may be, yeah, I found it. Here you can see here नाकामुरा एंड मुखर्जी, एंड देख सकते हैं आप 1 लिखे हैं आप यहाँ पे। ये जो 1 जो ये शो कर रहा है दैट रिसर्च पेपर। जो लास्ट में रेफरेंसेस हमने दिए हैं 1 2 3 4, in this way you need to cite in your research paper. Okay, and then appendices। ये होता क्या है ना, सपोज कुछ इक्वेशंस है, लेंदी इक्वेशंस है, एंड इट इज टेकिंग टू मच स्पेस, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं। सो वो क्या करता है, फ्लो को ब्रेक करता है। फ्लो को ब्रेक करना मतलब सपोज रिव्यूअर्स आर रीडिंग योर रिसर्च पेपर एंड द फ्लो नीड टू बी मेंटेन्ड। सो फ्लो ब्रेक ना हो करके क्या करते हैं, जो ऐसी चीज़ें लाइक फ्रॉम दोज इक्वेशंस, फ्रॉम दीज इक्वेशंस आर गिवन इन एज अपेंडिसेस, ठीक है, वो लास्ट में है। ठीक है, रेफरेंसेस के बाद लास्ट में इफ समवन वांट्स टू रिफर कि आपका इक्वेशंस कैसे जनरेट हुआ एंड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सो फ्रॉम देयर वन कैन रिफर। या ऐसा फ्लो डायग्राम्स हैं। सो बीच में स्पेस की कमी की वजह से या फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम एज शोन इन फिगर द फ्लो चार्ट इज गिवन इन अपेंडिक्स 1 2 3 वॉट एवर, ठीक है। तो यही आपका मेन आपका स्ट्रक्चर है। दीज आर द कंटेंट्स, इट शुड बी देयर इन anyone's research paper. Okay, and suppose you want to know more details about what I have described, like abstract, what is this, and before that actually what is research. So that is also given here, what is research, ठीक है। So you can say here from an old French word searcher means to seek or search, and the prefix re means again. So it becomes a research. And what is the definition of this? It is defined as intensive search with the purpose of becoming certain. In another way, it is a systematic investigation into reality to gain knowledge. So this is the research. What is research? Okay, and the structure of research paper already I have discussed, and now what is the meaning of abstract? Okay, so to briefly introduce the reader to the aims of the study, the methodology, results and the findings. तो results में आपको क्या अचीव किए वो नहीं बताना है,
व्हाट मे बी द पॉसिबल रिजल्ट्स, ये बताना है, व्हाट मे बी द पॉसिबल फाइंडिंग्स, ये बताना है। वो चीज़ का बताना है जब कंक्लूजन में बताना है आपको। ओके, एंड देन इंट्रोडक्शन। Okay, in this to state a clear overall purpose for the study, often framed in a discussion of the need the research is satisfying. To define the research questions of the study, to give a brief background of relevant theory and practice for your topic. ठीक है, तो ये आपको लास्ट ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको बैकग्राउंड देना है, ब्रीफ बैकग्राउंड देना है। आप सडनली तो नहीं स्टार्ट कर सकते, किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स आर देयर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस देयर, एंड व्हाट आर द मिसिंग्स देयर, व्हाट आर द लिटरेचर गैप्स आर देयर, एंड देन हाउ टू ओवरकम दैट, लाइक दैट। ओके, and then literature review. So what it is, to summarize what conclusions have been reached in the research literature and whether different writers agree or not, to highlight main issue and the controversies around the problem. This is the literature review. Okay, and if you talk about methodology, so what is this, to demonstrate that you are aware of research methods used to study this topic. आप उसको स्टडी कैसे करेंगे, आप उसको मॉडलिंग कैसे करेंगे, आप उसको सिमुलेशन कैसे करेंगे, या एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे रेडी करेंगे, तो ये आपका अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ओके, देन रिजल्ट्स, to present the findings of your research in an orderly manner. ठीक है, यूजिंग हेडिंग प्लान्ड इन योर methodology or headings arising from the pattern found in the research. And discussion to comment on the trends findings. जैसे आपको कमेंट करना है कि आपका फाइंडिंग्स, भैया ऐसा क्यों मिला, ऐसा क्यों नहीं मिला, क्या करने से ऐसा हुआ, लाइक दैट, एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट your data suggests, to highlight anything unexpected that came up. Okay, and a conclusion, again, to sum up your findings and highlights the significance of the outcomes of your study, to discuss the limitations of your study and indicate where further research is needed. So conclusion में जैसे आपको बताया फाइंडिंग्स को बताना है, इन्हें क्वांटिफिकेशन मैनर की परसेंटेज के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि ये इतना करने से ये हुआ तो क्या मिला, आपको डेटा के फॉर्म में बताना है, डेटा से के साथ आपको लिखना है। ठीक है, और साथ में आपको कोई जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं, जैसे दूसरे के पेपर में आपने कमियां निकाली लिटरेचर सर्वे में, तो आपके पेपर में भी कुछ लिमिटेशंस हो सकता है, दैट लिमिटेशंस आल्सो यू हैव टू हाईलाइट, ओके, इन ए क्लेवर मैनर, दैट limitations you have to highlight. However, I have achieved this, but still there is a possibility for the further research to improve my results. Okay, like that. And references. So to list alphabetically all the reference materials that have been cited in the text of the report. Okay. सो कई बार होता है अल्फ़ाबेटिकली होता है, या कई बार होता है जैसे मैं अपने पेपर में 1 2 3 करके, तो उसमें भी होता है। ओके, एंड appendices to present relevant details such as letters to participants and organizations, to present details of questionnaires, surveys, and other relevant instruments that you developed for the study, for the purpose of the study, to present relevant documents, okay, reports, policy, historical documents। ठीक है, तो उसको आप लास्ट में कर दीजिए, बट आपको आफ्टर रेफरेंस, बट यू नीड टू कोट, यू नीड टू साइट, कि कोई पढ़ते हुए उसको देख ले, हाँ भैया ये चीज़ यहाँ पे रखा गया है। ओके, ओके, व्हाट आर द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया, पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि उसमें क्या क्या सेक्शंस होना चाहिए, हेडिंग्स होना चाहिए, लाइक आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन उसके बीच में कीवर्ड्स देना होता है। ठीक है, कि ये कीवर्ड्स आपका जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है, और ये बहुत इन जनरल नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, and the affiliation here it is required, and it depends upon various journals
अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स क्या करना होता है इसमें, ऑल ऑथर्स नेम यू हैव टू पुट, देन द email id, and also sometimes contact numbers are required. So ये तो पब्लिश्ड पेपर हैं, चलो अनपब्लिश्ड पेपर देखते हैं, या एक ड्राफ्टिंग फॉर्म में है उसको देखते हैं. या आप देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन में इसी में लिटरेचर है, अलग से सेक्शन नहीं दिए हैं लिटरेचर रिव्यू का. एंड इससे भी अच्छा और देखते हैं. या so here you can see the title of the paper, then information affiliations. Okay, so affiliations may it includes the information of authors and affiliated with which institute, and you need to give the email id. और ये क्या है आपका, like in my case the institute name with the address. ठीक है, so like Indian Institute of Technology Roorkee, it is the institute name, but if I include Roorkee then pin number then India, so it is the location, or you can say address of the institute. Then abstract already I have detailed, keywords already I have discussed in introduction, the basic information background you have to give in this जैसे कि बताया मैंने लिटरेचर रिव्यू का अलग से सेक्शन नहीं दिया है, यहीं पे मैंने लिटरेचर रिव्यू दे दिया है. ओके, एंड आपको ये जो इन दिस पैराग्राफ, ये last paragraph it tells about the structure of the paper, like section 2 deals what, section 3 deals what, section 2 4 deals what. like section 2 क्या है, section 2 if you see this is the section 2. तो ये क्या बता रहा है, what are the things are there. Before that you have to highlight your objectives. What are the objectives in your paper that you have to highlight here. Okay, like the developed control strategy has been extended to 2 degrees of freedom cooperative space robots pulling a wire vertically. ठीक है, so based on the literature reviews what I found the missings, then I wrote here my objectives. Okay, then in section 2 like impedance control of space robot, so it is the modeling and simulation work. Okay, and you need to draw the schematic diagrams. Okay, and below you have to write, you have to level it, and also you have to cite it, never forget, like figure 1b, like in equation number also, equation number, in this way you have to cite everything. ओके, आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो फिगर है ये प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, एंड व्हाट आर द टेक्स्ट इनसाइड, वो उसका फॉन्ट साइज और ये आपका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज दोनों ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए. एंड सपोज यू राइट इनिशियली पेपर, तो आप कैसे, मतलब मार्जिन्स क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए. सो सी हियर इनिशियली इफ यू राइट पेपर, so what means what are the things should be there, like in my case see, if I click this paragraph, then see the spacing before and after. So before I have put 0, after I have put 6, and the line spacing, so it is 1.5 lines. Okay, but it depends upon the requirement of the publishers, उनको जैसा चाहिए उस फॉर्म में मॉडिफाई करना होता है. But before that you keep ready your research paper with this means spacing. Okay, यहाँ पे जो हाईलाइट्स दिखाया गया है ये वाला, सो आफ्टर कमेंट्स फ्रॉम द रिव्यूअर, देन व्हाट आर द चेंजेस वी मेड हियर दैट वी हैव हाईलाइटेड. और ध्यान रखिए कि पब्लिशर के पास स्पेस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करने होते हैं. सो in that way, in view of that, make more concise, more compact your papers,
मीन्स योर फिगर्स, इक्वेशंस और एवरीथिंग। कुछ जर्नल्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, उसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते, दे डोंट अलाउ टू सबमिट इनिशियली इन द इनिशियल लेवल। ठीक है। और जैसे आपका ये पैरामीटर्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स यूज्ड इन योर रिसर्च पेपर्स, एवरीथिंग यू नीड टू डिस्कस। And at the last, also you have to give the acknowledgement. Suppose your research is, your project is funded, so you have to give the acknowledgement. It is funded by like DST, it is funded by from this, the research is carried out with, suppose other institute is also involved, so वो आपको एक प्रकार एक्नॉलेज देना है, तो वो लिखना ना भूलें। आजकल कई जैसे अपेंडिक्स बताया था आपको, ये देखिए अपेंडिक्स, ये बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस है। अगर इसको आप मेन बॉडी बीच में रखेंगे तो ये फ्लो को ब्रेक करता है, इसलिए लास्ट में रखा गया है। ओके, एंड नाउ द पब्लिशर्स जर्नल्स आर आस्किंग व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस ऑथर्स, लाइक 3 ऑथर्स आर देयर, सो तीनों का कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करना पड़ेगा कि फर्स्ट ने क्या किया, सेकंड ने क्या किया, थर्ड ने क्या किया। So I hope my this briefing about the way to write the research paper, how to write the research paper, आप रिसर्च पेपर लिखना कैसे स्टार्ट करें, रिसर्च पेपर में व्हाट आर द कंटेंट्स शुड बी देयर, हाउ व्हाट आर द मीन्स हाउ इट लुक्स लाइक, कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पेपर्स में, तो वो सारी चीज़ बता दिया है। एंड डेफिनेटली आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द रिसर्चर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसी पे स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आई होप ये आप रिफ़र करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, देन आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये आपको अवेयरनेस मिलेगा, ये आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि पेपर कैसे लिखें, कैसे इफेक्टिव वे में लिखें, ताकि आपका पेपर पब्लिश हो जाए। आपका पर्पस यही है ना, पेपर पब्लिश करना है। सामने वाला पेपर पब्लिशर्स क्यों पब्लिश करेगा जब आपकी पेपर में क्वालिटी ही नहीं रहेगा, और उसके पहले क्वालिटी के पहले आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, सामने वाला उसको देखेगा ही नहीं। एक प्रॉपर वे होता है, हर एक चीज़ का प्रॉपर तरीका होता है। तो उसके बाद फिर टेक्निकल थिंग्स देखा जाता है कि क्वालिटी क्या है पेपर का, फाइंडिंग्स क्या है, कि कहीं ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है बस उसी को रिपीट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा रहता है तो स्टार्टिंग में ही पेपर रिटर्न हो जाता है, या रिव्यू होने के बाद पेपर वापस आ जाता है। अब इसमें कई महीने लग जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो इसलिए बिफोर सबमिटिंग यू नीड टू टेक केयर अ लॉट, एवरीथिंग यू गो थ्रू। ओके, और क्या है, आपको जैसे पेपर में आपका पेज नंबर्स देने होते हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस थिंग है। सो विद दिस आई हैव डन, थैंक यू।